Assalamu alaikum students, how are you all? The topic is fossorial adaptation. As we have studied the cursorial adaptation in the college, and as I have already told you that the adaptation is the fitness of organism to a particular type of environment or a habitat. ठीक है. एडाप्टेशंस ऑर्गेनिजम्स जो हैं एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में अडॉप्ट होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर उनकी मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर और बिहेवियर जो है वो अकॉर्डिंग टू दैट एनवायरनमेंट वो अडॉप्ट करते हैं, राइट. देयर इज़ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस, देयर इज़ फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस, and there are modifications which are behavioral modifications and protective modifications. So the environment which is well suited for the organism is that environment जहाँ वो अपनी पर्टिकुलर लाइफ स्पेंड करेंगे, राइट. तो यहाँ हमने जो है वो एग्जाम्पल फसोरियल एडोप्टेशंस के लिए, और हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया था कि आपके पास ये जो एडोप्टेशंस हैं इसमें ऑर्गेनिजम्स जो हैं अकॉर्डिंग टू दी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट अपने स्ट्रक्चर में चेंजेस लाएंगे, फंक्शन में चेंजेस लाएंगे, मॉर्फोलॉजी में, फिजियोलॉजी में और बिहेवियर में, राइट. So a fossorial adaptation is that type of adaptation which is the underground mode of adaptation, underground mode of life. And a fossorial word is derived from the Latin word fossor, means digger. So the organisms included in this category, they actually have the habit or they are adopted to dig, right. So they are either they are fully fossorial, truly fossorial, wholly fossorial, or they are partially fossorial. These organisms, they remain in underground whole life, or they remain underground for some days like hibernation, right. The types of fossorial organisms are wholly fossorial and partially fossorial. Wholly fossorial organisms are those organisms that are adopted the mode of fossorial life because of the multiple purposes, right. तो हमारे पास ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्होंने मल्टीपल पर्पस के लिए अपनी जो लाइफ है वो अंडरग्राउंड स्पेंड करने के लिए इनकी बॉडी में एडाप्टेशंस हुई हैं, राइट. तो यहाँ आपके पास ये जो एग्जांपल्स हैं इसमें स्नेक्स, पर्क्यूपाइंस, हेजहॉग, मोल, रैट, मोनोट्रीम्स वो कैटेगरी है जिसमें हम कहते हैं कि ये वो मैमल्स हैं जो एग लेइंग मैमल्स हैं. तो इसमें डक बिल, प्लेटिपस और स्पाइनी आंट ईटर आ जाता है, राइट. Then we have the partially fossorial. Partially fossorial means the organisms which spend their life for a little time, they go underground for a less purpose. Means के let's say for example they went down for hibernation or they went down for breeding purpose. Let's say for example in this case we have swine and elephant. Swine is the domestic pig and elephant actually ये आपके पास digging करते हैं, अंडरग्राउंड मोड में जाते हैं जबकि रिवर्स जो हैं वो ड्राई हो जाएं, रिवर बेड्स जो हैं वो ड्राई हो जाएं, और रिवर बेड्स जब ड्राई हो जाते हैं तो ये अपने टस्क से या अपने सूंड से ये डिगिंग करते हैं ताकि ऊपर चूँकि ड्राई हो चुका है तो वाटर की सप्लाई के लिए इनको असल में चाहिए होता है वाटर, क्योंकि रिवर बेड जो हैं जब ड्राई हो जाते हैं तो एलिफेंट अपनी लाइफ को बचाने के लिए जब रिवर बेड ड्राई हो जाए तो रिवर बेड की डिगिंग करता है और रिवर बेड जो है वहाँ से नीचे से पानी निकालता है और उसको कंज्यूम करता है, राइट. सो नाउ द मॉडिफिकेशंस, वो मॉडिफिकेशंस जो इनकी बॉडी में आएंगी जो फसोरियल ऑर्गेनिजम्स हैं वो मॉडिफिकेशंस क्या हैं.
The body shape must be spindle shape, fusiform to offer less resistance. The shoulder girdle in the mole should be strong. In case of legless fossorial animals like snake and lizard, the body is cylindrical. The skull is produced into a snout. Snout एक आपके पास उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है, नोज होती है for digging purpose, right? And what is the modification in tail? In case of hedgehog, rats and woodchuck, the tail is short. In case of wombat and mole, the tail is vestigial, right? So we are saying in most of the fossorial animals, the tail is either short or vestigial. It is short in hedgehog, rat and woodchuck, while in wombat and most of the moles it is vestigial, right? It is considered that in some fossorial animals the tail is used as a tactile को क्या कहते हैं, sense of touch, right? In some of the animals. So यहाँ पर चूंकि टेल या तो शॉर्ट है या तो वेस्टिजियल है, ताकि ये अंडरग्राउंड मोड में जब जाएं तो वहाँ पर जो है वो पूरी की पूरी बॉडी ऐसे अडॉप्ट होनी चाहिए कि अंडरग्राउंड मोड में कोई प्रॉब्लम्स ना आए, राइट? सो आइज एंड ईयर्स फोसोरियल ऑर्गेनिजम्स के कैसे होंगे या फोसोरियल एनिमल्स के कैसे होंगे? वी डिवाइड द आइज एंड ईयर्स इनटू, कह सकते हैं कि डाययूरनल में क्या है और नॉक्टर्नल में क्या है. डाययूरनल मीन्स के डे टाइम में जो एक्टिव होते हैं एनिमल्स, और नॉक्टर्नल मीन्स कि द ऑर्गेनिजम्स दैट आर एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट, राइट? तो इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, आपको डायग्रामेटिकली जो है वो बुक में मिल जाएगी. कैंगरू रैट की भी डायग्राम मिल जाएगी, हेजहॉग की भी डायग्राम मिल जाएगी बुक में, राइट? एंड इसके साथ साथ आपने हेडिंग्स क्रिएट करनी है आइज एंड ईयर्स में, नॉक्टर्नल और डायurnal की, राइट? सो वी हैव the modifications in the eyes and ears, right? In case of nocturnal animals that burrow to escape during the day have large eyes. एक्चुअली ये नाइट टाइम में एक्टिव होते हैं और डे टाइम में यूजुअली ये इनएक्टिव होंगे. एक्सटर्नल नेयर्स या नॉस्ट्रल्स कैसे हैं यहाँ के ऑर्गेनिजम्स में? आप हेडिंग दे सकते हैं कि नंबर वन हेडिंग थी बॉडी शेप. नंबर टू हेडिंग थी टेल. नंबर थ्री हेडिंग थी आइज एंड ईयर्स. एंड नंबर फोर हेडिंग थी आपके पास एक्सटर्नल नेयर्स एंड नॉस्ट्रल्स, राइट?